السلام علیکم رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، کہا شاعر نے کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ ہو کے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک شاعر ہے حضرات جن کا بہت لمبا انٹینا ہے، یعنی پنڈت جی ہیں، ان کا نام کالی کا پرساد ہے۔ حضرات جب پنڈت جی نبی کی شان میں بولے تو کیا خوب بولے، بد عقیدہ بول رہا ہے تو غلاظت بول رہا ہے، بد عقیدہ بول رہا ہے تو بدبودار بول رہا ہے، بد عقیدہ بول رہا ہے تو اس کے منہ سے خوشبو نہیں بلکہ بدبو نکل کے آ رہی ہے۔ پنڈت جی ہیں، یہ لمبا انٹینا ہے ان کا، نام ان کا کالی کا پرساد ہے۔ حضرات جب پنڈت جی بول رہے ہیں تو کیا خوب بول رہے ہیں، پڑھ کے کہتے سبحان اللہ۔ حضرات پنڈت جی بولے کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، اور دولت کونین کو کوئی مٹھی میں دبا لے، اور کالی کا پرساد سے پوچھے کہ کیا لے، تو میں نے کالی کا پرساد کی بارگاہ میں، یعنی میں نے کالی کا پرساد سے پوچھا، اے کالی کا پرساد کیا چاہتے ہو؟ چاہو جلال چاہتے ہو، چاہتے ہو چاہو عشوت چاہتے ہو، دنیا کی بادشاہت چاہتے ہو، یا دنیا کی اور چیزیں حکومت چاہتے ہو، یا کرسی چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کالی کا پرساد، نہ میں چاہو جلال چاہتا ہوں، نہ تو عزت و عظمت چاہتا ہوں، نہ تو شان و بلندی چاہتا ہوں، اگر کچھ چاہتا ہوں تو نبی کی پیر کی جوتی یعنی نالے میں مبارک چاہتا ہوں۔ حضرات پنڈت کالی کا پرساد اپنی زبان قرآن سے زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں، میں نبی پر ایمان نہیں لایا ہوں، اور ایمان نہ لانے کی بنیاد پر نبی کا عشق سے دل میں اس طرح سے پیوست کیا ہوا ہوں۔ حضرات پنڈت بولے ہیں کہ اگر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، اور دولت کونین کو کوئی مٹھی میں دبا لے، اور کالی کا پرساد سے پوچھے کہ کیا لے، تو کالی کا پرساد نہ لینے محمد کو آنکھوں سے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ حضرات یہ پنڈت جی تھے جن کے پاس عشق ہے، ایمان نہیں ہے، اگر آئیے اس کا شعر سناؤ، جس کے پاس ایمان بھی ہے، جس کے پاس جذبات بھی ہے، جس کے پاس ایمان بھی ہے، حضرات اس کا شعر سناؤ، جس کے پاس عشق بھی ہے، جس کے پاس قلم بھی ہے، جس کے پاس روشنی بھی ہے، جس کے پاس میں جو ہے عشقی جذبات بھی ہے۔ اب شاعر کتنے خوب انداز میں لکھتا ہے، وہ شاعر جو عشق جلویز ہے۔ اللہ شاعر نے لکھا ہے کہ وہ پوچھتا ہے چہرہ مصطفیٰ کیا ہے، وہ پوچھتا ہے چہرہ مصطفیٰ کیا ہے، یعنی تفسیر وہ دعا کیا ہے، وہ پوچھتا ہے چہرہ مصطفیٰ کیا ہے، یعنی تفسیر وہ دعا کیا ہے، اور حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر نہیں سمجھے گا کہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے، وہی سمجھے گا کہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کنز الکرامت حضرات گرامی، وہ اعلیٰ حضرت جو اپنی طرف آپ جو ہے ایک جگہ پروگرام کے لیے جا رہے تھے، حضرات خدام آپ کے جو ہے اولی کو اٹھا رہے تھے، اسی خداموں میں ایک نوکر موجود تھے، نوکر کو ان کی شان کے لائق ہی لگ نہیں ہے، مگر حضرات گرامی ان کی مجبوری تھی وہ کرنے کا۔ حضرات وہ سید آل رسول تھے، حضرات وہ کعبے پر جو ہے ڈولی کو اٹھائے ہوئے تھے، مگر حضرات گرامی جو خوشبو سونگ کر بتا دے، اس کو جو حضرات گرامی جو بلادی دیکھ کر بتا دے، اس کو حضرات کہتے ہیں، اس کو حضرات کہتے ہیں، اور جو خوشبو سونگ کر پہچان لیتا ہے اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مستہ کھڑے ہو کر عرض کی تھی کہ یہ بتاؤ تم میں سے آل رسول کون ہے، تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ حضرات ایک سید زادہ نکلے، کہا میں ہوں سید زادہ۔ حضرات اپنی پگڑی کو اتارا اور اعلیٰ حضرت ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد نے کہا اے سید آل رسول، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، بڑی دیر میں پہچان پایا ہوں، اے سید آل رسول مجھے معاف کر دو۔ اعلیٰ حضرت زاروں کا رونے لگے اور کہا اب بات ایسے نہیں بنے گی، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں پر تمہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ اعلیٰ حضرت جس کے سامنے پڑے اچھا کی ٹوٹی بولنا بند ہو جایا کرتی تھی، اعلیٰ حضرت کی شان کے بارے میں ایک شاعر نے تو یوں لکھا تھا، دنیا جب تلوار سے وار کر رہی تھی تو لوگ تلوار سے وار کر رہے تھے، لوگ گالی گلوچ کر رہے تھے، اس وقت بھی
टोली में बिठा दिया आले रसूल को, सैयदजादे को बिठा दिया है, अब कांटा लगा दिया है, अब कांटा लगाकर आला हजरत चले हैं, जहाँ से लेकर जहाँ पर चले थे वहीं से फिर पहुंचा दिया है और गलती को माफ कर लिया है। अगर तवज्जो करना, हजरत गिरामी आला हजरत ने जो है ये पहचान बता दी दुनिया वालों को कि जो सैयद आले रसूल होते हैं उनकी ताज़ीम क्या होती है, उनकी तकदीर क्या होती है, उनकी बुलंदी क्या होती है, उनकी इज्जत क्या होती है। आला हजरत से दर्ज मिलता है और आला हजरत को फिर आगे बोले हैं। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा दौड़ता हजरत ये आला हजरत है। आला हजरत तवज्जो करना, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी ये आला हजरत है। अब शेर सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। हजरत गिरामी शायर ने कहा कि वो पूछता है चेहरे मुस्तफा क्या है, यानी तफसीर दुआ क्या है, लाल खून है जिसके वजूद के अंदर नहीं समझेगा कि मीरात मुस्तफा क्या है। और उठाके कांधे पर टोली को आला हजरत ने, उठाके कांधे पर टोली को आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। जिंदाबाद आला हजरत जिंदाबाद तकबीर रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत ये आला हजरत थे, मगर आला हजरत की थोड़ी सी बात और बताता हूँ। जब तक हम आला हजरत का नाम ले लेते हमारी बात ही शुरू नहीं होती है, क्योंकि आला हजरत ने तो हमें ये सिखाया है कि तारिकी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और जिसने बड़ मजहबों के किले ढा दिए हिम्मत आला हजरत पे लाखों सलाम। हजरत गिरामी आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबरुल इस्तिलाम सय्यदी सरकार आला हजरत का कदम उठा है तो हजरत गिरामी जहां पर आदम को आला लिख रहे थे, जकरिया को आला लिख रहे थे, यहया को आला लिख रहे थे, मूसा को आला लिख रहे थे, ईसा को आला लिख रहे थे, तमाम के तमाम लोगों को आला लिख रहे थे। मैंने आला हजरत की बारगाह में अर्ज़ किया था आला हजरत आपने आदम को आला लिख दिया, आपने जकरिया को आला लिख दिया, आपने यहया को आला लिख दिया, आपने तमाम पैगंबरों को आला हजरत आला लिख दिया है। अगर मेरे नबी की शान क्या है तो आला हजरत का कलम बरेली से बोलता है। बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर मेरा और तुम्हारा इमाम हिंदुस्तान का आला हजरत, पाकिस्तान का आला हजरत, जर्मनी जापानी मलेशिया हो मलेशिया हो यूरोप हो हॉलैंड हो पूरी दुनिया का आला हजरत जब कलम को उठाता है और कलम की जब टूटी बनी नहीं है तो आला हजरत ने कहा कि हमने आदम को आला लिखा, जकरिया को आला लिखा, यहया को आला लिखा, मगर हम नबी को आला नहीं बल्कि हम तो ये लिखेंगे कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। करना बदली रसूल की होती रही, करना बदले न बदला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे झूले झूले झूल गए, करना डूबे न डूबा हमारा नबी। और कब्जा पर रजा उस सभी जगह है कसरत का सहारा हमारा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल हजरत गिरामी अब तवज्जो करें, जो से हमने बात छोड़ी थी वहां से कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग कुछ अहबाब की गुजारिश हुई थी कि आप हजरत वहीं से शुरू कीजिएगा। हालांकि वहां पर मुझे बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां पर माइक का सिस्टम ऐसा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी लोगों को पसंद आया। खैर जिससे लोग प्यार करते हैं उसकी कोई ना कोई जरूर अदा पसंद आती है। हजरत देखा होगा आपने, अगर कोई किसी से प्यार नहीं करता है तो उसमें नुक्ताचीनी करने वाले बहुत होते हैं। देखो चल कैसे रहा, देखो बैठ कैसे रहा, देखो खा कैसे रहा। और आशिक होता है बड़ा अच्छा खा रहा है, बड़ा अच्छा पी रहा है, बड़ा अच्छा उठ रहा है, इसके जैसा उठना किसी का उठना नहीं है, इसके जैसा बैठना किसी का बैठना नहीं है। हजरत ये इश्क की दलील है, मगर आला हजरत का इश्क देखें। आला हजरत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सस्ते चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझाने की वो आग लगाएगा, जो आग बुझाने की वो आग लगाई है।
और आइए तवज्जो करते चले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी हाजिर हैं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? हजरत गिरामी की सुनील का कहना था, मेरे नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी करीब हो जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बल्लो मा तरकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त न ज़मीन थी न ज़मा था, न मक्की थी न मक्का था, न चुनी थी न चुना था, कोई चीज बनी नहीं थी। मेरे सहाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मेरे नबी को, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। खाली अल्लाह था, मेरा नूर था, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी को, मेरे मुझको देख रहा था, मैं अपने खुदा को देख रहा था, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा था। हज़रत गिरामी तभी तो शायर ने कितने अच्छे अंदाज में यूं लिखा है कि वही रब है जिसने मुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने का तेरा रास्ता बताया, तुझे हम रहे खुदाया, तुझे हम रहे खुदाया, और वो तुम्हारी पाक मरियम बनफख्त फीक आदम है, आदम निशान आदम हज़रत गिरामी आपसे कहते हैं मेरे नबी के खाली उस वक्त नबी का नूर है, और हज़रत गिरामी मेरे आका फरमाते हैं खाली अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, और मैं था उस वक्त कोई नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि मेरे नूर को आगे बढ़ाया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम के नूर को पैदा फरमाया, हज़रत ज़करिया के नूर को पैदा फरमाया, हज़रत यहया के नूर को पैदा फरमाया, हज़रत यूसुफ याकूब के नूर को पैदा फरमाया, हज़रत यूनुस के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत नूरों को पैदा फरमाता रहा, नबियों के नूर पैदा कर दिए गए। हज़रत की जब तमाम नूर पैदा कर दिए गए, इन तमाम नूरों को एक जगह रख दिया गया, इनकी प्रकाश की रोशनी, इनकी लाइट, इनका नूर इतना तेज था कि एक दूसरे को देखकर जगमग कर रहे थे। अब एक सवाल पैदा होने वाला है, अगर जहन में पैदा नहीं हुआ है तो अब सुन लीजिए, आपका कहना होगा कि अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अब एक नूर से जो है इतने नूर पैदा हुए तो नबी का नूर थोड़ा हो गया होगा। अब आपकी आंखों में ये सवाल आएगा तो इसका फौरन जवाब ये है कि आप एक अगरबत्ती जलाइए, एक अगरबत्ती जली है, उसके बाद में दूसरी जो है एक मोमबत्ती जलाइए, उसके बाद दूसरी मोमबत्ती जलाइए, तीसरी मोमबत्ती जलाइए, चौथी मोमबत्ती जलाइए। दुनिया में जितनी मोमबत्तियां पैदा की गई है, बनाई गई है, अगर सबको जला दीजिए तो पहली मोमबत्ती थी कैसी जल रही थी वैसे ही जल रही है, ऐसे ही मेरे नबी का नूर है, जैसे पहले था वैसे ही बाद में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, तमाम नूर चला है, तमाम नूर जगमग कर रहे हैं, जैसे सितारों पर जैसे सितारे जगमगाते रहते हैं। हज़रत गिरामी इसी इस्लाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है अपने महबूब के नूर को रख दिया। अब जैसे ही नूर को रखा है तो जिससे रोशनी लाइट जो है पूरी दुनिया में फैली हो, हज़रत गिरामी जिसको ट्रांसफार्म कहते हैं, उससे पूरी दुनिया रोशन हो। अब वही आ जाए तो हज़रत गिरामी उसकी रोशनी का आलम क्या होगा। अब तवज्जो करें, मेरे नबी का नूर रख दिया गया। अब जैसे ही मेरे नबी का नूर रखा है तो हज़रत गिरामी आदम का नूर फीका है, ज़करिया का नूर फीका है, यहया का नूर फीका है, यूसुफ का नूर फीका है, याकूब का नूर फीका है। तमाम नूरों को जो है देखा गया कि फीके पड़ गए हैं, मगर नबी का नूर वैसे ही आबोताब के साथ चमक रहा है। आला हज़रत का शेर मेरे ज़हन में चमक रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत अजीम मतलब लिखते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अपने शीशों में चमका हमारा नबी। हज़रत गिरामी जैसे ही नबी का नूर चमका है, हज़रत गिरामी ये चमक रहा है नूर मोहम्मदी। हज़रत गिरामी इतने में मूसा कलीमुल्लाह खड़े हो गए रब की बारगाह में, अर्ज़ करने लगे एक परवरदिगार ये तेरे महबूब ये कौन नूर वाला है जिसके नूर की बुनियाद पर तमाम नूर फेंके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह सुनो, अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो तेरे नूर को पैदा ना करना, इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो ज़करिया के नूर को, यहया के नूर को, आदम के, यूसुफ के नूर को पैदा ना करता, तमाम पैगंबरों को पैदा ना करता, और यानी पूरी दुनिया को पैदा नहीं करता, यानी जिन्न इंसान को इबादत नबातात जमाए कायनात खुदाए कायनात आलमे आला हो या आलमे असफल हो, पूरी दुनिया में फरिश्ते हो जिन्नात हो, पूरी दुनिया का कोई भी अशिया हो, कोई भी चीज हो, मूसा कलीमुल्लाह किसी को पैदा ना करता, इनको पैदा करना मकसूद ना होता। तभी तो आला हज़रत अज़ीम बरकत फरमाते हैं, वो जो ना थे वो कुछ ना था, वो जो ना हो वो कुछ ना हो, जान है वो जान की, जान
जिंदाबाद सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा मुफ्ती जिशान मंजरी साहब किबला जिंदाबाद मुफ्ती जिशान मंजरी साहब किबला जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे हैदरी या अली अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की, परवरदिगार इतना पावर वाला नबी, इतना ताकत वाला नबी, इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत नबी, इतना पावरफुल नबी, तूने इसके नूर को इतना रोशन क्यों किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये मेरा महबूब है। अब दुनिया वाले कह रहे हैं हमारी तरह बशर है, एक कह रहा है खाली नूर है, एक कह रहा है बशर है, ये भी अटका है वो भी अटका है, मगर कामयाब वही है जिसको आला हज़रत ने कहा ना हमारे नबी बशर खाली है ना नूर खाली है, हमारे नबी बशर भी है और नूर भी है। हज़रत गिरामी जिसने नूर और बशर दोनों जाना है उसी को आला हज़रत कहते हैं। आला हज़रत ने तो यूं कहा अल्लाह की सत्तावा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रत गिरामी मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं परवरदिगार जब इस महबूब को तूने पैदा फरमा दिया है तो हमें क्या अता फरमाया है? तुम्हें उम्मत दी जाएगी, तुम्हें किताब दी जाएगी और तुम जो है अपना कलमा दियोगे, मगर एक मूसा कलीमुल्लाह जितने नबी दुनिया में जाएंगे सब जाने के साथ साथ अपने कलमे के साथ साथ अपना कलमा लोगों से पढ़वाएंगे, मगर मेरे महबूब का कलमा तुम पढ़ोगे। तुम एक परवरदिगार ऐसा करो और अपने मुकद्दर फिराज करो, जिसका कलमा हम पढ़ रहे हैं उसका कलमा मूसा कलीमुल्लाह पढ़ रहे हैं, जिसका कलमा हम पढ़ रहे हैं उसका कलमा ईसा रूहुल्लाह पढ़ रहे हैं, जिसका कलमा हम पढ़ रहे हैं उसका कलमा याकूब पढ़ रहे हैं, यूनुस पढ़ रहे हैं, यूसुफ पढ़ रहे हैं। पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के उलमा को अंबिया का वारिस कहा है, अंबिया का वारिस। अब तवज्जो करना, अगर कोई इस उम्मत के उलमा की बुराई करता है तो समझ लेना उसने अंबिया की वारिस की बुराई की है, और जो अंबिया के वारिस की बुराई करता है उसका ठिकाना जहन्नम में रहता है। इसलिए मेरे दीनी भाइयों इन मसाइल के साथ साथ अपनी जिंदगियों को गुजारो। अल्लाह तवज्जो करते चले। मूसा पैगंबर अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहा ए परवरदिगार हमारा कलमा क्या होगा? मूसा कलीमुल्लाह ने जैसे ही इतना अर्ज किया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ए मूसा आदम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, मोहम्मद का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत शीश का कलमा होगा, याकूब का कलमा होगा, ज़करिया का कलमा होगा, यूनुस का कलमा होगा, सबका एक कलमा होगा, मगर मेरे महबूब का कलमा सब पढ़ेंगे। हज़रत गिरामी तवज्जो करना, जैसे ही ये कलमा जारी हुआ हज़रत गिरामी नूर मोहम्मदी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आदम की पेशानी पे चमका, ज़करिया और हज़रत नूर की पेशानी पे चमक रहा है। ये नूर चमकते चमकते हज़रत गिरामी चमकते चमकते ये नूर हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में चमका। हज़रत गिरामी एक घर है खाना काबा जिसकी तामीर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की है, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने की है। हज़रत गिरामी ये घर तामीर कर दिया गया। अब हज़रत इनकी सरदारी चल रही है। पहली सरदारी कौन कर रहा है? पहली सरदारी करने वाला कोई और नहीं।